So, good morning, everyone. It's and welcome to our program. It's Dil Dil Pakistan, and I am your host, Duresh Hawar, taking you through this session. And today we have with us a very well-known personality and who is very nice human plus pleasant personality. Currently managing partner in tech solutions, life coach, human rights activist, and blogger. So let's welcome Ms. Zufishan Hassan. So, Miss Zofishan, how are you? I'm very well, thank you. How are you? Alhamdulillah, I'm really fine. Thank you so much. So, I will introduce the topic we are having session on. It's women empowerment. तो Hmm. ये जो है ये आज की दौर का बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा वाइटल टॉपिक है और इस बारे में हम आज बात करेंगे और सबसे पहले प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी ऑफ प्रोग्रेस Uh, in relation to women empowerment, तो एक फ्रेंड है, बड़ी मजे की बात आपसे कहूंगी. मैं एक यंग फ्रेंड्स के पास गई, हस्बैंड एंड वाइफ. तो वो कोरोना के रिलेशन से पूछ रहे थे कि मुझे कहते हैं आपने कौन सा मास्क पहना है. So I said कि being born in Lahore, Pakistan and a female, तो 8-10 साल की उम्र से एक बहुत अच्छा मास्क पहना हुआ है. अभी कोई 50 साल हो गए हैं वो मास्क पहनते हुए, लेकिन कोरोना की वजह से मैं दूसरा मास्क भी पहन लेती हूँ. पहन लेती हूँ. Okay. So Very nice. Alhamdulillah, journey has been very good, Shavar. That's लेकिन great. लोगों को they don't understand, especially people living in North America, etc. Yeah. कि जो एक being born in a typical patriarchal society, Yeah. उसका उसका क्या impact होता है on a female child. और I was born in a very educated family, modern yet conservative. Yeah. So जब मैं पढ़ रही थी, जब स्कूल में, तो मैं एक रोड स्कॉलरशिप पे जाना चाहती थी इंग्लैंड में, और उस किस्म के एस्पिरेशंस थे. Even though my Wow. father, who was a criminal lawyer, he was Yeah. okay with that, but my brother wasn't. One of my brother wasn't. So मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकी, शिवार. And then I made sure कि फिर मैं on the top of the academics जाऊं, और मैंने MSc किया developmental psychology में. लेकिन उसका good part ये है कि I have 3 kids, Hamza, Amal and Miral. I Wow. sent Great. I sent them all to study abroad. 2 studied in Canada, Vancouver में, and 1 studied in Chicago. So जो भी जिंदगी के अंदर challenges आते हैं, अगर आप उसका positive aspect देखो, तो it is manifold. So what I could not achieve, I made sure that my kids That achieve my that. kids. That's wonderful. That's really wonderful. And a mother with a vision, only she can think like that. And I am, ये सुनने के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि आपने उनको वही ट्रैक दिया जिसकी आपने विश किया. That's amazing. Absolutely. और उस दौरान में, बिकॉज आई डिड मास्टर्स इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो फिर Okay. मेरा इंटरेस्ट और आया सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने में, कि Wow. सोसाइटीज क्या और कल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन साइकोलॉजी. सो इट वाज अ 3-pronged थिंग के studying psychology, human behaviors, and studying the impact of society. और वो बहुत significant रहा है मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में, जो मैंने तकरीबन 46 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड में इंटरवेंशंस की हैं, women empowerment trainings की हैं, keynote speeches and conference की हैं. So alhamdulillah, it has been a great journey. लेकिन मैं ये बात करूंगी कि आप मेरी जर्नी कह रहे थे, तो जो इम्पैक्ट होता है कल्चर का, मैं एक छोटी सी उसकी एग्जांपल दूंगी. इट्स मोर लाइक अ फ्रेज that for all our Pakistani viewers, that you can take a person out of Pakistan, but you can't take the Pakistan out of a Out person. of the person. Yeah, amazing. That's So wonderful. हाँ हाँ,
सो वो सोसाइटी का और जो आपके कल्चर का इम्पैक्ट होता है ना, बिकॉज वो आपके डीप सबकॉन्शियस के अंदर एम्बेडेड होता है। और अगर आप हिप्नोथेरेपी भी कराएं तो बड़ी मुश्किल से आप टैप कर सकते हो कि कहाँ कल्चर का इम्पैक्ट आया है। So, in my journey, then when I got married and when the kids were young, I was a full-time housewife. But the moment बच्चे school जाने लगे, my youngest, when she was 3, then I joined my husband Hasib. He set up a training company और उस जमाने में trainings मतलब हम Alhamdulillah, we can be called the pioneers of training in Pakistan at that time. गिने चुने 3-4 लोग होते थे। सो इस तरह मेरी जो सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है उसने एक नया मोड़ लिया। मगर बीइंग अ मदर एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड, बाद में फिर हम दुबई शिफ्ट हो गए और उधर से ट्रैवल करना बहुत आसान था टू साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। तो वो जो एक गिल्ट होता है ना ऑफ अ वर्किंग मदर, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि मैं बच्चे छोड़ के जा रही हूँ और वो है connected. yes, balancing your personal and professional life is very important. तो वो जो गिल्ट होता है वो एक मदर को डबल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट करने पे फोर्स करता है। सो कई लोग कहते हैं कि जी वर्किंग मदर्स जो हैं उनके बच्चे, अभी वो जो सारे फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस होते हैं उसके अंदर लिखते रहते हैं समथिंग अगेंस्ट। एग्जैक्टली, सही कह रही है, ये मेरे से भी बड़ा डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन इसमें यही होता है कि वो वर्किंग वुमेन है, क्या करेंगे इनके बच्चे, व्हाट दे विल डू। बट जो मैं बात कर रही हूँ, जो गिल्ट होता है ना ऑफ अ वर्किंग मॉम, वो ये फिर जो स्टे एट होम मॉम है, बिकॉज मैं दोनों रह चुकी हुई हूँ। स्टे एट होम मॉम स्पेंड्स टाइम बट नॉट क्वालिटी, देयर इज क्वांटिटी बट नॉट क्वालिटी। एक वर्किंग मॉम है वो कहती है मैं सारा दिन मैं दफ्तर में रही हूँ तो अब मैंने क्वालिटी टाइम देना है। तो व्हेन आई वाज वर्किंग, मैं वापस आके सुबह बच्चों को स्कूल जाने से पहले खुद नाश्ता बनाती थी उनके, एंड देन आई वुड गो टू व्हेन आई वुड गो टू वर्क and come back, and one thing I always did was read to my children at bed. That was my quality time with my kids. बहुत बड़े भी हो गए थे तो ये सिलसिला चलता रहता था। तो it's all about balancing out your priorities. So from there our viewers can analyze कि देखें ये इम्पॉसिबल नहीं है। एक एक ऐसी खातून जिसका एक विजन है, उसको पता है कि शी हैज प्लान्ड कि मैंने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है और साथ में मैंने अपने करियर को भी साथ में लेकर चलना है। सो दिस इज फॉर ऑल दोज वुमेन जो कि जिन्हें ये सोसाइटी की तरफ से समटाइम्स कहा जाता है कि यू कांट डू, बट this is the platform and this is the interview from where you guys can get the motivation कि देखें if one woman is doing that, I can do it. Yeah. एक आपको एग्जांपल दूंगी। मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप में कराची की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक यंग गर्ल हु वाज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड, तो उसने कहा ज़ोफिशा व्हाट शुड आई डू, शुड आई कंटिन्यू working after the child is born? So she said, I've worked since I left college, since I graduated college. मैंने कहा देखो, अगर तो तुमने अनहैप्पी रहना है बच्चे के साथ, तो ना तुम बच्चे को खुश रख सकोगी ना एक बैलेंस भी कर सकोगी। So see, if that gives you happiness, then you make it happen. और निग्लेक्ट नहीं होते हैं, मतलब यहाँ तो पाकिस्तान में, बाहर it's a little difficult, बट इन पाकिस्तान आपका सपोर्ट सिस्टम कितना है, दादा दादी है, नाना नाना है, you know, that's the point. Yeah. So you count on them. I mean, उनसे मांगिए कि I need help, and it's totally doable. It's not an impossible dream. And you know what? कि जो ऐसे बच्चे जो कि इस तरह के एक्टिव मदर के बच्चे होते हैं, आप उनमें और आम बच्चों में बड़ा डिफरेंस देखते हैं, देखने में आता है। The way they are confident, the way they are balancing their own life by watching their mom, because she is balancing everything. She is multitasker, and that's why they learn. Absolutely. देखो, it's good. I am a mother first and then a professional woman, because that's the role I love most.
लेकिन Yeah. not sacrificing yourself for everything. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को कम प्रायोरिटी दे, मैं कह रही हूँ अपने आप को भी उतनी ही प्रायोरिटी दे जितने आप अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने हाउस होल्ड को दे रहे हैं। Okay, and from my side, it's the second question for you is that any challenges and issues that you face to achieve your desired goals? क्या मुश्किलात आपके रास्ते में इस क्योंकि you guys are trend setters भाई, आप लोग ट्रेंड सेटर्स हैं सीरियसली के जो जिन्होंने वर्कशॉप्स जो हैं पाकिस्तान में उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद उसको कंटिन्यू भी रखा तो इस नाम तक इस मकाम तक आने में क्या चैलेंजेस आपकी आए और किस तरह के थे वो देखिए शवार मुझे हमें तकरीबन 24 nearly 25 years हो गए हैं in the training industry. So I was young at that time. I was in my 30s when I ventured into the training field. And being a woman, even though मेरी अलग workshops भी होती थी, but अगर मैं हसीब के साथ भी करती थी, तो जितने हमारे audiences होते थे ना, वो सब मेरे से age में बड़े होते थे, and 100% मेल्स होते थे एक तो पहले ही फीमेल फोर्स कम थी तब तो मुझे कई दफा लगता था दैट व्हाई वुड दे टेक मी सीरियसली और अपनी अपनी एबिलिटीज और टैलेंट पे थोड़ा सा डाउट होने लग जाता था कि क्या है एंड सुनो देखो जो सोसाइटी है वो हमें एक सेकंड रेट सिटीजन के बारे में ट्रेन कर देती है कंडीशन कर देती है And that in psychology is called learned helplessness. कि आप हेल्पलेस नहीं हो लेकिन आपको सिखाया जा रहा है कि लर्नड हेल्पलेसनेस है आप वीक हो जस्ट बीइंग अ फीमेल एक्सेट्रा so the challenges were not so much outside in the reality but more in my mind but with every new workshop with every new step मैंने अपने आप को फिर हैविंग फेथ इन माई सेल्फ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है एंड अगर कोई नहीं भी मुझे लग रहा है कि सुन रहा है या कोई निगेट कर रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड कॉन्वर्सेशन फॉर माई डेवलपमेंट एंड फॉर अदर पीपल्स डेवलपमेंट सो ये चंद चैलेंजेस थे मेरी इंडस्ट्री में दूसरा ये था कि अगेन जो आपने पहले बात की कि रिलेटिव्स कहते हैं यार आपके बच्चे रुल जाएंगे और ये हो जाएगा I mean it's all a myth और आहिस्ता आहिस्ता now 2020 and things are all already emerging in the right direction so ये तो हो गया आपके challenges के हवाले से और इसमें अभी तक जो है आपने जो लर्न किया वो आपके डाउट्स खत्म हो गए जो आपके माइंड में थे और ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए भी और सुनने वालों और देखने वालों के लिए भी कि जो चीजें आपको आगे जाने से रोक रही होती हैं समटाइम इट्स ऑल इन योर हेड एब्सोल्युटली मैं एक कोटेशन करूंगी नेपोलियन बोनापार्ट की कोटेशन है दैट द बिगेस्ट बैटल्स आई हैव फॉट वर नॉट in the field but in my own mind so हमारा काफी सारी जिंदगी हम बसर करते हैं अपने दिमाग में rather than in the world और ये we need to actually accept this fact yeah it's true but you know as you learn by yourself you know to fought against you know those fears and you just overcome them like within no time although कुछ time लगा होगा उनमें उनको cover करने में लेकिन then finally the way you know you just took out yourself from those doubts and fears was just amazing and that's the best feeling in the world I believe that transforms you it does absolutely yeah okay tell me that in our society what are the obstacles you think a woman has to face in professional development in their own fields देखो we are talking about the entire world or women coming into the management देखो the corporate world is less than 150 years old
मतलब इंडस्ट्रियल Yeah, रेवोल्यूशन के exactly. बाद, लेकिन कोई 100-150 साल से organizations have come into being. तो men have dominated that and we need to accept that. इसलिए ये चीज सिर्फ related to पाकिस्तान नहीं है, it is all over the world. Look, एक तो lack of opportunities at higher management. When Entire World War, management, yeah. हाँ, World War ने women को force किया to go into factories and work. That helped to see people, women working in different industries as well. लेकिन अभी भी lack of opportunities कम है for women all over the world and especially Pakistan. Pay scale कम है. अगर आप statistics देखें तो मेल कॉलीग को ज्यादा मिलेगी. अक्सर लोग, मैं इवन इन माय सर्कल ऑफ फ्रेंड्स और अक्वेंटेंसेस बात करती हूँ तो लोग इस बात पे यकीन नहीं करते, बट सम मैनेजर्स हु डू वो निगेट करते हैं कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो. देयर इज अ ह्यूज पे स्केल डिफरेंस बिटवीन व्हाट मेन आर पेड एंड व्हाट वुमेन आर पेड. और अगर आप देखें फीमेल सीईओज कितने हैं who rise through the ranks up there, या वैसे भी बहुत कम परसेंटेज है for higher management jobs. और उसका जो ग्लास सीलिंग कहते हैं ना, एक टर्मिनोलॉजी है ग्लास. So glass ceiling women के लिए तो बहुत ही strong है. They can see it but they can't reach it because there is a barrier for women. And barrier of going higher, some in their own minds and some because नहीं है opportunities women के लिए. और उसका ताल्लुक है, एक terminology है unconscious bias. What do people think of women in general? जब मैं अपनी वर्कप्लेस हरासमेंट ट्रेनिंग कराती हूँ तो मैं जेंडर रोल्स की बात करती हूँ. तो व्हेन आई आस्क द मेन व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन, वो कहेंगे जी ये तो बहुत इमोशनल होती हैं, ये फलां जॉब नहीं कर सकती हैं, ये सेल्स की जॉब नहीं कर सकती हैं, लेट नहीं बैठ सकती हैं, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. ये जो है ये माइंडसेट है. दे कांट डू. या ये इसको इन अदर टर्म्स कहा जाता है फिक्स्ड माइंडसेट एंड एजाइल माइंडसेट. ये दिस कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन टू वुमेन वो एक फिक्स्ड माइंडसेट है, एक अनकॉन्शियस बायस है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट एक एग्री बिजनेस की हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसके अंदर लोगों से पूछा, आई एम ऑलवेज क्यूरियस, तो उन्होंने कहा जी हम सेल्स जॉब नहीं दे सकते विमेन को, यहाँ तो यू नो हमारे जो सेल्स पीपल हैं वो मोटरसाइकिल पे बैठ के गांव में चले जाएंगे या कहीं वो कर देंगे, विमेन क्या करेंगी. तो मैं उनसे कहती हूँ कि एटलीस्ट आस्क देम इफ देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी, at least give them an interview and ask them, then it is their right to reject. हाँ, रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, एंड women are ready to accept. अब तो सेल्स में बहुत सी women जा रही हैं because you know this is 2020. और आप ये देखें कि बहुत सारी आपको कॉमनली भी अब तो बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, कॉमन स्टोर्स हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारी सेल्स गर्ल्स मिलेंगी एंड they are very good, they are you know they behave very nice और वो आपको बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड भी कराती है. एंड समटाइम्स आई रियली appreciate them individually that you guys are doing great job because maybe उनको कोई और appreciate नहीं कर रहा है, but ये as a woman आप जो है वो उनको appreciate करें. So that's what I do whenever I see them. और ये बात आपने बहुत अच्छी की कि हम लोगों एक तो जो पे स्केल का डिफरेंस है वो भी है, और अपॉर्चुनिटीज में बहुत दफा ये बात कॉमन है. मतलब इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस मैंने देखा है कि एक साहब थे, उन्होंने ये बात कही कि खवातीन ने कौन सा फैमिलीज को देखना होता है. क्या देखना होता है? फीमेल्स ने कौन सा फैमिलीज को रन करना होता है या देखना होता है. इट्स ओनली ड्यूटी ऑफ अ मेन. सो मेरा यहाँ पर कहना ये है कि जिस तरह से सोसाइटी मर्ज हो रही है, हमारी बहुत सारी जो है नॉर्म्स मर्ज हो रही हैं, तो उसमें बहुत सारी फीमेल भी फैमिलीज को रन कर रही हैं. क्यों नहीं कर रही? ऑब्वियसली दे आर रनिंग, मे बी. या एब्सोल्युटली. शिवार,
देखें, जी इट्स ट्रू कि मेन ब्रेड अर्नर पहले मेन ही होते थे। अब उनके जी जी ऊपर इतना प्रेशर है विद इन्फ्लेशन एंड विद प्राइस हाइक्स एक्सेट्रा, सो व्हाई डोंट यू इन्वॉल्व देम टू शेयर योर बर्डन? ठीक है ना? या और जॉब का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता। एक सही एक एक वुमन की सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, कोई पढ़ी लिखी है तो उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल नीचे चली जाती है। नीचे और चली मैं जाती है जी मैं अपनी एग्जांपल शेयर करूंगी कि फॉर द फर्स्ट अबाउट 8-10 years while I was हाँ married, kids were young, हम्म, जैसे मैंने कहा, तो हम्म, मुझे लगता था कि मेरा आईक्यू लेवल रोज जो है ना थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। मैंने नीचे जा मास्टर्स किया हुआ है एंड एज आई सेड आई लव बीइंग अ मॉम, लेकिन मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं थी। So for a woman, I mean, she needs for her own self confidence कि मैं कुछ कर रही हूँ, I'm doing something कुछ कर रही worthwhile. है So it's not just financial, it is for your oन good. आपकी development भी होती है, आपकी grooming भी होती है. So if she can find support. बट मुश्किल ये है हमारे कल्चर के अंदर, शिवार, हम्म परमिशन चाहिए होती है। अगर अनमैरिड है, पहले फादर से, फिर ब्रदर्स से, मेरे फिर ब्रदर से हस्बैंड से, और वो भी खत्म नहीं होता अगर मतलब हस्बैंड ना हो या कुछ तो और सोसाइटी सन्स से बड़े हो तो सन से भी। सो दिस इज अनफेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट फेयरनेस। मैं ये नहीं कह रही कि एक को तरजीह दी जाए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग फेयर। वी ऑल नीड some kind of a development in our life. एग्जैक्टली वी नीड सम चेंज। देखिए इसमें कैपेसिटी है कि अगर अगर आप अपनी अपनी खवातीन को अपनी जो है बच्चियों को अगर आप चांस देते हैं तो ये कि आप उनकी पर्सनालिटी में बड़ा पॉजिटिव चेंज देखेंगे। और इस तरह से नहीं होता है कि आप वो चेंज जो है वो सिर्फ नेगेटिव हो, इट विल बी पॉजिटिव। ट्रस्ट देम, पहली बात ट्रस्ट देम। और दूसरी चीज कि अगर तो वो आपका बर्डन शेयर कर रही है तो देन इट्स फार बेटर देन एनी स्ट्रेस जो कि आपको होता है। तो ये है कि आई बिलीव कि उनको अपनी 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 जो भी उनके सेक्टर्स हैं उनमें उनको काम करने का मौका देना चाहिए। उस दिन किसी ने बात की कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एक परसेंटेज होता है कि कितने स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब देखें, एग्जैक्टली एक औरत 5 साल तक अगर मेडिसिन पढ़ती है और फिर वो जी घर बैठ जाती है, तो उसने एग्जैक्टली किसी और की सीट ले ली है, जो मतलब किसी मेल की, खुद स्टडी करने में, बट आगे तक नहीं लेके गए। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीट। सो इट इज एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फिर या तो ना कीजिए, अगर इफ यू या तो कमिटेड ना कीजिए योरसेल्फ, एग्जैक्टली। सो मेक इट हैपन। Okay, so the fourth one is what is the path as a society, nation, and country Pakistan has to adopt for supporting women? So क्या होना चाहिए, किस तरीके से जो है ना ऐसा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान में ये चीज को सपोर्ट किया जाए? एक तो मैं आपको थोड़ा सा अपना एग्जांपल दूंगी कि 18 जी years in श्योर। Dubai and then we decided to move back to Pakistan. अब जब आप बाहर रहते हैं, वापस मूव करना, it's very very difficult. तो I needed some kind of passions to come back to Pakistan, and women empowerment was one of my passion. तो मैं आपको अपनी ड्रीम बताती हूँ, and I've set up different platforms जैसे Lean In Organization Global है, मैंने उसको किया है and everything. मेरा पैशन है कि by the year of 2025, keeping in mind diversity and inclusion, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 30 से 35% विमेन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अभी अभी Amazing. 12 है, 15 है, 17 है। सिर्फ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां 50% तक भी चला गया है women का, लेकिन on an average it's between 12 to 17. So this is one of my passions, that it should rise to 30 to 35%. And I would like a lot of organization, which we might talk later if we have time, to have
inclusion and diversity of other people as well, of people from different religions, maybe even some kind of a handicap, or have Hmm. uh, a percentage of transgender people as well. And that is what shows Amazing, amazing. a Hmm. progressive nation. We cannot deny the fact that we have all kinds of people, but उनकी Hmm. participation organization में किस हद तक है, वो उस कंपनी के बारे में रिफ्लेक्ट करती है. दूसरा ये है बिल्कुल, कि बिल्कुल. विमेन को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोग्रेसिव सीईओज एंड एमडीज या हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी पॉलिसी के अंदर अगर ये एक डाल लें कि वी हैव Hmm. टू ब्रिंग द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट पीपल इन Women. आवर Yeah. ऑर्गेनाइजेशन. Yeah. अगर एक सीईओ का विजन होगा ना, तो जो उसकी मैनेजमेंट है ऑल टीयर्स डाउन, वो जरूर उसको Hmm. इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. सो इट इज द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी on the head of organization, whether it's a multinational, whether it's a government, etc., or an SME, कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने. और इम्प्लीमेंट सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रोग्रेसिव लगेगी, बट देयर हैज Hmm. टू बी अ कल्चरल चेंज. इफ नॉट Hmm. in this decade, at least by the time their daughters or sons grow up, agar change na aaya, तो how will our nation actually progress? So that is the need of the day, to support not only their peers but next generation को support करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है. That's really beautiful. And I'm really happy to see that we are having such gems in the society who are, struggling and and those who are thinking in this way. And that's really amazing, Zofishan, and Thank you. appreciating. In what do you think कि कितने परसेंट ये जो आपकी स्ट्रगल है, आपका आपका एफर्ट है, आपका विजन है, इसमें पहले आज से एक डेकेड फॉर एग्जांपल हम 6 इयर्स बैक बात करते हैं, वहां से अब तक क्या चेंज आपने देखा, और आप आगे 10 इयर्स में क्या चेंज देख रही हैं, क्या इस तब्दीली में, इस प्रोग्रेस में जो स्पीड है, क्या इसमें फर्क है? The thing is, अभी if I talk about Pakistan, या तो उसमें दो लेवल्स पे हम बात कर सकते हैं शवार. एक जी. तो एजुकेटेड लेवल है. एम्पावरमेंट का मतलब है कि यू नो द विमेन कमिंग अप फ्यू नॉचेस एवरी ईयर एक्सेट्रा. सो अब सिर्फ मैं अभी एजुकेटेड सेक्टर की बात कर सकती हूँ कि अब विद द मिलेनियल्स नाउ कमिंग अप या इनटू द जॉब मार्केट, things are changing a lot. Now women are more career oriented. अब उसके ओरिएंटेड. अंदर, या उसके अंदर जहां पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट है कि जी कॉलेज से ग्रेजुएट कर लिया और आपकी इतनी उम्र हो गई तो अब बस शादी कर देनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग, बट देयर राइट. शुड बी other career goals as well. And these days both girls and boys have those kind of career goals, that thoda sa main career bana lu and बना then लो. I will either opt for marriage. So it's a good change. And now in certain industries in Pakistan, I see a lot of women who have their career planning done and they are coming into it. So a positive change is already coming there. That's great, amazing. Okay, so move forward. Needs and tools for women economic empowerment in your perspective. सबसे पहले जो नीड है ना, वो एक रियलिटी चेक है. एंड नॉट जस्ट, अगेन आई कीप द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव बिकॉज हमारा मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह. रियलिटी चेक ये है कि women don't support women. So if women don't support women who are already Yeah. in the minority, can you imagine the men who are already struggling with their careers? Do you think they are going to be supporting? So the need of the day is that women need to stick together and support each other, motivate each Support each other. other. Yeah. Yeah. And as I said that अगर तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं नजर आता कि करियर पाथ जो है वो कहीं आगे जा रहा है, so the good thing is that now the youngsters with the startups etc, they are already thinking about entrepreneurship.
अगर Yeah. अगर आपकी फैमिली कंजर्वेटिव है या जो whatever kids are young etc, then you don't have to go in the job market. Have Yeah. the ability to start कोई छोटा मोटा venture, any kind of business. And the good thing is that I see a lot of that in youngsters as well. उन्होंने घर से या तो catering शुरू किया है, they are beautiful bakers, जबरदस्त cakes Yeah. बनाते हैं, या anything they are, or clothing and different Yeah. branding of their Exactly. products. So they are already Different doing fields. that, which is great. So entrepreneurship ki taraf, it's a great change. You can start True. that, or don't listen to the oldies जो कहते हैं बस जॉब में जाएं, जो आप जिंदगी भर Exactly. 35-40 साल उसी जॉब में करके रिटायर हो जाए. No, the world is your oyster. You can think about creative ways to start your own business. Amazing. Beautiful. Okay. So, Ms. Zufishan, your message to women folk in light of your lifetime experience. Don't take things personally. सबसे No, ताके no. ताके नहीं नहीं नहीं, not just to you but to all women. To all women, Change yeah. change the perception the other gender has about women. All right. Yeah. Strategize करें, logically चीजों को approach करें, be persistent, be tenacious, never give up. थोड़ी सी Never. कोई अगर road block आ गया, तो you don't have to just think of it as a stop sign. Think of it as a roadblock और आगे चलते जाइए. दूसरा मैं ये कहूंगी कि अपनी स्किल सेट को बढ़ाएं. Be multi-skilled. If one doesn't work, go for another. Even if whether you work or you're in your own business, but keep developing your skills, because that gives you a lot of confidence. फिर एक मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है सारे सक्सेसफुल लोगों की कि वो they read a lot. So I feel for women they should read biographies of famous women. They had the same kind of challenges और उनकी personality, उनकी strategies को अपने circumstances के मुताबिक implement करनी शुरू करें. दूसरा जैसे मैंने कहा, help other women. And when you help others, it also motivates you. और सबसे जरूरी जो है, women are in competition with the entire female population of the world. Exactly. So, so इस वजह से self-esteem issues भी हो जाते हैं. But I would strongly recommend one thing and one thing only: have faith in yourself. Just have faith in yourself, believe in yourself, and you can achieve it. It's mind-blowing, and thank you so much for such wonderful advices. Dear viewers, इस सेशन से मैंने भी बहुत कुछ लर्न किया है, और आई होप सो कि आपने भी मिस सुफिशान से बहुत कुछ लर्न किया होगा. एंड वी अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया हमारे सेशन के लिए. एंड आई एंजॉयड अ लॉट and learned a lot. Thank you so much, Amar, and thank you for giving me the opportunity to speak to your audiences as well, and look forward to coming back on the platform again, inshallah.